Hello students, today we start method of economic evaluation, unit number 7 in a transportation engineering 2. Dear students, this topic is covered the three method of the economic evaluations uh, which is used to evaluate the economic for highway projects, right? And in lecture number 10 and 9 we see about the economic evaluations and total transportation cost and purpose of economic evaluations. Here we see the method of economic evaluations. So students, start with the method of economic evaluations. Method of economic evaluation, three common methods are used, right? There are three methods which is commonly used. First is net present value, that is called NPV method, and second is benefit cost ratio method, uh, right? And third is internal rate of return method, IRR, right? So dear students, all these are based on discount cash flow technique of discounting all future cost and benefit to common years, right? So स्टूडेंट्स, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये आपके डिस्काउंटिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, दो यहाँ पे दो थिंग्स देखेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट, राइट? तो उस पे कितना डिस्काउंटिंग रेट है और हमारा जो कैश फ्लो, यू कैन से कैश फ्लो जो टेक्निक है उसमें जो डिस्काउंटिंग रेट है इन्हें कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में कॉमन ईयर में क्या है, तो उस पे ये तीनों मेथड बेस कर रहेंगे, ठीक है? सो हम अभी स्टार्ट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एनपीवी क्या है यहाँ पे? इन दिस मेथड द स्ट्रीम ऑफ कॉस्ट benefit associated with the project over an extended period of time is calculated and is discounted at a selected discount rate to give the present value, right? So here we that मैंने पहले ही बताया that it will be based on the discounted rate on the cost and benefits. So here we discounted rate given to the present value, which will be analysis. So in easy way you can say benefits are considered positive and cost are negative when we given the discount in a such a way, or you consideration is yeah, you can say assumption is taken for the benefits and cost. So our benefits taken positive, right? And cost taken negative, and their summation give their net present value. उन दोनों का जो समेशन होगा that is the given the present value, right? Or any project with positive NPV is treated as acceptable, right? So students, if यदि हमारे पास दो या तीन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है, तो हम उनकी एनपीवी वैल्यू निकालेंगे, नेट परसेंट वैल्यू निकालेंगे, राइट? ऑन बेसिस ऑफ डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे। और एनपीवी वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी जिस प्रोजेक्ट की, वो ही हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? सो दैट इज द एनपीवी, राइट? अब कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है? जिसकी हमारी एनपीवी पॉजिटिव आए, राइट? वी सी द फॉर्मूला टू फाइंड द एनपीवी, राइट? एनपीवी इक्वल टू V नोट माइनस C नोट ब्रैकेट्स प्लस V1 माइनस C1, यू कैन से हियर V नोट नहीं, यू V0 भी कह सकते हो, एंड here B1 minus C1 divided by 1 plus I plus B2 minus C2 divided by 1 plus I का whole square plus BN BN minus CN divided by 1 plus I power N, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स तक हम जा रहे हैं, राइट? कितनी ईयर्स तक हम प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे तो वही हमारा नंबर ऑफ ईयर आएगा। जैसे 15 साल के लिए हाईवे प्रोजेक्ट होता है, तो 15 साल के लिए हमें देखना पड़ेगा ना एनपीवी, राइट? सो हियर एनपीवी इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन द ईयर एंड बीटी इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट which occur in the year T. CT is the value of cost which occurs in the year T, right? And I क्या है यहाँ पे? डिस्काउंट रेट पर एनम
कितना हम डिस्काउंट रेट दे रहे हैं ईयरली, राइट, एंड एनी द नंबर ऑफ ईयर कंसिडर फॉर एनालिसिस, राइट। तो इससे हम एनपीवी फाइंड आउट कर लेंगे और जो एनपीवी पॉजिटिव आएगा जिस प्रोजेक्ट का वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नाउ वी सी द सेकंड मेथड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड। देयर आर ए नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस मेथड, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, बट एक सिंपल प्रोसीजर इज टू डिस्काउंट all cost and benefits to their present worth and calculate the ratio of the benefit to cost, right। हम क्या करेंगे, जो भी अभी प्रेजेंट वैल्यू पे जितना भी प्रेजेंट वैल्यू चल रही है किसी भी प्रोजेक्ट्स की जो भी है एक बेनिफिट्स और कॉस्ट को लेके, तो उसका क्या करेंगे, डिस्काउंट करके हम सारा एनालिसिस करेंगे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कितना आ रहा है, राइट। देखिए प्रेजेंट वैल्यू एक तरह से मैं सिंपली तरीके से बता दूं, आज 10 रुपए है, आज 10 रुपए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, आज आप लगाओगे 10 रुपए की, हम 20 टॉफी खरीद लेते हैं, राइट। यू कैन से आज 10 रुपए की वैल्यू हम देखें, वो लास्ट 10 साल पहले देखें 10 रुपए की वैल्यू तो डिफरेंट है, तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन से दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। Now the present value of 10 rupees is less as compared to the previous 10 years, right? So आप present value को ऐसे देख सकते हो, right? So present worth है, उसका जो present worth है उस पे जो भी डिस्काउंट है उस पे जो रेशियो आया कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो, राइट, वो हमने फाइंड किया। और बेनिफिट आर पॉजिटिव फ्लो व्हाइल कॉस्ट आर नेगेटिव फ्लो होना चाहिए, ठीक है। दस सेविंग इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर कंसिडर एज ए बेनिफिट। यदि ऐसा हो रहा है बेनिफिट आर पॉजिटिव फ्लो हो रहा है और व्हाइल कॉस्ट आर नेगेटिव फ्लो हो रहा है, सो दस द सेविंग इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर कंसिडर एज बेनिफिट्स। तो हमारा क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, राइट। If the benefit cost ratio is more than 1, the project worth undertaking, right। यदि इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, दैट इज द प्रोजेक्ट इज वर्थ अंडरटेकिंग, उसको प्रोजेक्ट का इंपोर्टेंस देंगे, राइट। तो आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है, आपका हमारी कॉस्ट कम लग रही है एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स, राइट। नाउ वी सी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। Internal rate of return is the discount rate which make the discounted future benefits equal to initial outlay, right। So here initial outlay मतलब जो initial में हम कितना पैसा लगा रहे हैं स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए इनिशियल में कितना पैसा लगाया, दैट कैन डिफाइन इनिशियल आउटले, राइट। तो हम कैसे मेक ए डिस्काउंटेड फ्यूचर बेनिफिट्स इक्वल टू, here is the future make a discounted future benefit that is equal to the initial outlay, right। तो initial में हमने जितना प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया that will be equal to the discounted future benefits, right। in the other word it is discount rate which make the stream of cash flow zero, right। stream cash flow is zero, right। तो हमने जितना बिजनेस में कैश फ्लो या यू कैन से किसी प्रोजेक्ट में कैश फ्लो था वो हमारा जीरो हो गया, तो दैट इज विल मेक ए डिस्काउंट रेट इन बेनिफिट्स फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, राइट। सो हियर वी यूज द फॉर्मूला cost at initial cost that will be the C0 B1 minus C1 equal divided by 1 plus I plus B2 minus C2 divided by 1 plus I का whole square plus up to the n Bn minus Cn divided by 1 plus I का whole square n, right। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट इक्वेशन देखी थी एनपीवी, तो उसमें क्या करा था हमने, बी जीरो माइनस सी जीरो था, यहाँ पे बी जीरो सी जीरो नहीं है तो उसको हमने जीरो कर दिया है, ठीक है, तो वो हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी टेक दिस, यहाँ पे बी जीरो हटा देंगे तो सी जीरो इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हमने इनिशियल स्टार्टिंग कॉस्ट एट द स्टार्टिंग टाइम्स दैट इज सी जीरो। So his equation may be solved by the trial error method. This equation solved by the trial error method, but it is a rather tedious. With computer program, the solution become very simple, right। With the computer program से हम easily solve कर सकते हैं इस equation को,
हम ट्रायल एरर मेथड हमारा टीडीएस पड़ेगा, बट कंप्यूटर प्रोग्राम से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, राइट। If the IRR obtained is greater than the ratio of interest, right? If IRR obtained is greater than the rate of interest obtainable by investing the capital in the open market, the project is considered acceptable, right? किस केस में acceptable करना है हमें? जब IRR जो भी होगा वो greater than होगा rate of interest obtained by investing the capital in ओपन मार्क, राइट। तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसमें हमें प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, राइट। दैट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नाउ वी सी द कंपैरिजन ऑफ all three methods, right? Here three methods present have their own merits and demerits, right? सभी methods की अपनी merits और demerits है। The advantage of benefit cost ratio method is its simplicity, hence it is widely used by highway engineering. मोस्टली हम बेनिफिट कोस्ट रेशियो मेथड है वो ही यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है। सो इट इज यूजली इन हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, कोई भी हाईवे प्रोग्राम करते हैं तो ये बेनिफिट कोस्ट रेशियो मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि ये इजी पड़ता है, राइट। इफ वी सी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इट रिक्वायर्ड एन assumption ऑफ डिस्काउंट रेट, राइट। ऑब्वियसली हम अज्यूम करते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट रेट देना है, राइट। सो विच शुड बी रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, राइट। किस पे डिपेंड करेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। इट इज रादर डिफिकल्ट टू नो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्यूरेटली, ठीक है। यदि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्यूरेटली थोड़ा पता लग जाए तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए सही रहेगा और मेथड के लिए भी सही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम एक एजम्पशन ऑफ डिस्काउंट रेट एज्यूम करके चलते हैं और देते हैं, राइट। So if we see the second disadvantage, the significance of benefit cost ratio is difficult to comprehend. This is especially so when the benefit cost ratio of alternative proposal differ only slightly, right. If we see the second and third disadvantage, it is sometimes difficult to decide which item should be term cost and which is benefit, right. तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा आइटम हमें कॉस्ट एनालिसिस के लेना है और विच फॉर बेनिफिट्स, राइट। हियर इज द three disadvantage. Now we see the NPV method also suffer from the same disadvantage as BC ratio method, is that a discount rate has to be assumed, ठीक है। एनपीवी में भी वही चीजें होती हैं, ठीक है, हम वही डिसएडवांटेज फेस करते हैं सारी। तो एनपीवी और इसमें ज्यादा फर्क नहीं, राइट। Here we see IRR method is popular with international lending agencies like the World Bank. देखिए स्टूडेंट्स, IRR मेथड है वो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं उसको, क्योंकि वो एक्यूरेसी और जो भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन से हमारा काम करता है। सो राइट, सो इट लैंड इटसेल्फ एडमिरेबल वेल फॉर यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, राइट। तो किसमें यूज हुआ आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन से, इट अवॉइडेड द नीड्स फॉर सेलेक्टिंग ए डिस्काउंट रेट इनिशियली। तो ये जो स्टार्टिंग में जैसे दोनों मेथड हमने देखे लास्ट में कि दोनों मेथड में हम स्टार्टिंग में एजम्पशन रेट जो डिस्काउंट रेट है दैट विल बी एज्यूम। सो इस मेथड में क्या होगा, दैट विल बी अवॉइडेड। so it is a better and it's used by the computer aided designs, and the rate derived from the calculation can be easily compared with the market rate of interest. इसमें हम जो रेट एनालिसिस ड्राइव करेंगे दैट विल बी कंपेयर्ड विद द मार्केट रेट इंटरेस्ट which with which इकोनॉमिस्ट, बैंकर एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट आर फेमिलियर, ठीक है, सबको सही लगता है। और हाउएवर इट प्राइमरी, ठीक है। सो आईआरआर मेथड आपका वर्ल्ड बैंक हुआ और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आरबीआई हुआ, ये सब हुए, ये आईआरआर मेथड यूज करते हैं, राइट। इसमें काफी चीजें ऐसे ही हैं, so that's why we use a large organization, international banking like a world bank. So if we disadvantage देखें इसी क्या है, disadvantage is that the computation are tedious, मतलब थोड़ा
difficult पड़ता है, and can only be done with the trial and error. It need a computer program and a digital computer facility for obtain the solution, right? So students, ये हमारा comparison था between three methods. You can write comparison between NPV or benefit cost ratio IRR methods. You write, right? Then right. Or now we see the once more important point of this slide. Method of economic evaluation, that is the three methods will be used. मेथड तो और भी हैं, बट हमारे सिलेबस में तीन ही मेथड है, तो हम तीन ही मेथड करेंगे, ठीक है। और कॉमनली यही मेथड यूज होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी स्टडी ओनली थ्री मेथड्स, राइट। फर्स्ट इज द एनपीवी मेथड, सेकंड इज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड और आईआरआर मेथड। कॉमनली कौन सा मेथड यूज होता है हमारा? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, क्योंकि ये सिंपल पड़ता है, ठीक है। और इनकी डिस और एनपीवी भी आपका, ठीक है, यूज कर सकते हैं, बट कॉमनली हम हाईवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हम बीसी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर इनकी डिसएडवांटेज क्या देखें, जो हमें इनिशियल में जो डिस्काउंट रेट एज्यूम करना पड़ता है, दैट इज द प्रॉब्लम, कि कितना डिस्काउंट रेट एज्यूम करे, ये सब कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और जो आईआरआर मेथड है वो क्या है आपका, ठीक है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, लाइक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुआ, बैंकर्स हुए, ठीक है। और जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक है, सो ये सारी चीजें उसके लिए यूज होती हैं। तो आईआर मेथड आपका क्या है, एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन देता है, और जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी कंपेयर विद द मार्केट रेट, ठीक है, ओपन मार्केट में कंपेयर हो जाता है, ठीक है, जो कि फैमिलियर होता है सबके लिए, बैंकर्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सभी के लिए फैमिलियर होता है, ठीक है। बट ये डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा जो कंप्यूटरली थोड़ा जो प्रोग्रामिंग टेडियस होता है, तो इसको ट्रायल एरर मेथड से यूज करते हैं। इसमें डिजिटली सारा, इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए डिजिटली सारा कंप्यूटर फैमिलियर चाहिए हमें, सो दैट्स व्हाई that is you can say disadvantage of this IIR, right? So now we uh, see all type of the methods and project analysis, cost, all and highway financing, all see in this unit number 7. So after this topic, the unit number 7 is finished. So please learn about the unit number 7. All no numerical is covered in this unit. Only theory part is covered. So please see the previous year question paper and solve the questions on basis of previous year questions. So students, if any problem in this unit, so you can contact me. Students, bye till there. Thank you.